Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain exception handling in Java. In previous videos, I have explained some parts of exception handling in Java. Today I am going to explain exception hierarchy. तो देखिए एक्सेप्शन हायरार्की क्या है हमने बताना है। देखिए क्या है एक्सेप्शन हायरार्की क्या है। द थ्रोएबल क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द एरर्स एंड एक्सेप्शंस। एन एरर ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स इंटरनल एरर्स, फॉर एग्जांपल रिसोर्स exhaustion inside the Java runtime system. An exception object describes a recoverable error that should be handled by the programmer. तो क्या होता है, सबसे पहले क्या क्लास होती है, थ्रोवेबल क्लास होती है। तो थ्रोवेबल क्लास इट इज द रूट क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लासेस. इट्स इमीडिएट सब क्लासेज आर, देर आर टू सब क्लासेज, कौन कौन सी, एक्सेप्शन क्लास एंड सेकेंड इज एरर क्लास. तो एक्सेप्शन क्लास क्या है, दिस क्लास हैंडल्स कंडीशंस दैट यूजर प्रोग्राम्स कैन रीजनेबली डील विद. The exceptions are usually the result of some flaws in the user program code. Some examples of exceptions: division by zero error, array index out of bounds error. उसके बाद क्या है, error class. This class is used by Java runtime system to handle errors occurring in the runtime environment, which are generally beyond the control of user programs. Some examples of errors क्या हैं, देखिए, out of memory error, hard disk crash. फिर क्या है, differences between error and exception. error और exception के बीच में क्या difference है. An error indicates that a non-recoverable has occurred that should not be caught. Errors usually cause the Java virtual machine to display a message and exit. तो ये एरर की बात हुई. दूसरी इसकी डेफिनेशन है क्या, an error is a subclass of throwable class that indicates serious problems that a reasonable application should not try to catch. Most such errors are abnormal conditions. For example, one of the subclasses of error is named virtual machine error. This error is thrown to indicate that the Java virtual machine is broken or has run out of resources necessary for it to continue operating. तो ये क्या है, ये बात है हमारी एरर की. अब दूसरी बात क्या होगी, एक्सेप्शन की. देखिए, एन एक्सेप्शन इंडिकेट्स an abnormal condition that must be properly handled to prevent program termination. अब क्या है, the class exception and its subclasses are a form of throwable that indicates conditions that a reasonable application might want to catch. तो ये बात हो गई डिफरेंसेस की, एरर और एक्सेप्शन क्लास की. अब बात करते हैं चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस. द एक्सेप्शंस इन जावा बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. पहला क्या है, चेक्ड एक्सेप्शंस. दीज रिप्रेजेंट इनवैलिड कंडीशंस इन एरियाज आउटसाइड द immediate control of the program.
checked exceptions are subclasses of exception class. A method is obliged to establish a policy for all checked exceptions thrown by its implementation, either pass the checked exception further up the stack or handle it somehow. If the program neither catches nor lists the occurring checked exception, compiler error will occur. अब बात करते हैं unchecked exceptions की. These exceptions are not subject to compile time checking for exceptions handling. These represent defects in the program's bugs, often invalid arguments passed to a non-private method. Unchecked runtime exceptions represent conditions that, generally speaking, reflect errors in our program's logic and cannot be reasonably recovered from at runtime. The built-in unchecked exception classes are error, runtime exception, or their subclasses. A method is not obliged to establish a policy for the unchecked exceptions thrown by its implementation, and they almost always do not do so. Handling all these exceptions may make the program cluttered and may become a nuisance. अब बात करते हैं फोर्सिंग एन एक्सेप्शन. फोर्सिंग एक्सेप्शन मतलब कि हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएं किसी एक्सेप्शन का और स्वयं एक्सेप्शन थ्रो करें. जनरली क्या होता है, ट्राई ब्लॉक में वो डेटा देते हैं, वो पोर्शन देते हैं जहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं. जब एक्सेप्शन आती है तो उसके नीचे कैच ब्लॉक होता है, वहाँ चला जाता है. अगर हम स्वयं ऑब्जेक्ट बनाएं तो हमें उसको फोर्सली थ्रो करना पड़ेगा यूजिंग थ्रो कीवर्ड. तो इसको बोलते हैं फोर्सिंग एन एक्सेप्शन, यानी हम स्वयं उसको फोर्स कर रहे हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं. जस्ट लाइक रिटर्न, अगर अपने आप से आती है, अपने आप से थ्रो होती है तो थ्रो कीवर्ड की जरूरत नहीं है. अपने आप से एरर आई और वो थ्रो हो गई, यानी इम्प्लिसिटली थ्रो हुई. और जब हम एक्सप्लिसिटली थ्रो करते हैं देन वी यूज थ्रो कीवर्ड विद इन ट्राई ब्लॉक. पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी एक्सेप्शन क्लास का, फिर उसको थ्रो कीवर्ड से थ्रो करते हैं. तो देखिए, तो फोर्सिंग एन एक्सेप्शन, वी कैन थ्रो एन एक्सेप्शन ईदर अ न्यूली instantiated one or an exception that we just caught by using the throw keyword. A throw statement causes the currently method to immediately stop executing, much like a return statement. An exception is thrown to the previous method on the calls stack. For example, the following statement throws a new array index out of bounds exception with 6 being invalid index. अब देखिए क्या है, थ्रो, यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बन रहा है. थ्रो न्यू अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन 6. अब ये क्या है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये क्लास होता है, एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास होता है. तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ये टेम्परेरी बनेगा और थ्रो हो जाएगा विद 6 वैल्यू. इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे, वी कैन ऑल्सो इंस्टेंटिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड देन थ्रो
इट इन अ सेपरेट स्टेटमेंट। पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएं फिर थ्रो से थ्रो करें, या थ्रो के साथ ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके थ्रो कर दें, दोनों तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट नाम क्या, ई इज इक्वल टू न्यू एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, उस ब्रैकेट में 6। फिर क्या हुआ, थ्रो ई कर दी, ई ऑब्जेक्ट बना तो ई को थ्रो कर दिया यूजिंग थ्रो कीवर्ड। या दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं, कैसे, देखिए ट्राई के अंदर तो इससे ज्यादा क्लियर होगा। ट्राई ब्लॉक बनाया और यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक्सेप्शन ओबी इज इक्वल न्यू एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सेप्शन ओबी इज इक्वल न्यू एक्सेप्शन और दे दिया यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये मैसेज होता है जब हम डिस्प्ले कराते हैं तो ये मैसेज डिस्प्ले होता है। तो एक्सेप्शन ओबी इज इक्वल न्यू एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब फिर क्या कहा, थ्रो ओबी। अब नीचे कैच लगाया ट्राई के, और वही एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ एक्सेप्शन क्लास लिखा, कैच एक्सेप्शन ई। तो क्या होगा, जो यहाँ से ओबी थ्रो होगा वो ई में कैच होगा, क्योंकि इसका क्लास नेम एक्सेप्शन है, यहाँ भी क्लास एक्सेप्शन है, तो यहाँ जो ओबी जो थ्रो होगा वो ई में कैच होगा। ये इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली थ्रोइंग द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। और जब अपने आप बनता है तो अपने आप थ्रो होता है, इम्प्लिसिटली थ्रो द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास, तो अपने आप बनता है, अपने आप थ्रो होता है, उसमें थ्रो कीवर्ड की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो एक्सेप्शन ओबी इक्वल न्यू एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, और फिर ये क्योंकि ओ बी बना तो यहाँ से होगा थ्रो ओबी, और कैच में वही क्लास एक्सेप्शन क्लास हुआ, एक्सेप्शन जो क्लास का बनता है वही होना चाहिए, तो यहाँ एक्सेप्शन का बनना है इसलिए एक्सेप्शन है ई, तो क्या होगा, ओबी ई में कैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एरर प्रिंट होगा, फिर ई डॉट गेट मैसेज, तो ई में जो एरर है यानी गेट मैसेज में क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, तो यहाँ प्रिंट होकर आएगा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो ये है तरीका। अब देखिए क्या है, वी कैन थ्रो ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप java.lang.throwable in almost all situations we will throw an object that is a subclass of java.lang.exception. The throw keyword is used to force an exception. Ordinarily, a new exception object is created, then it is thrown. The act of throwing an exception causes the exception of the code within the method to be immediately terminated and control is transferred to the closest exception handler. Closest exception here means the method that is closest in the chain of method calls. For example, if main method calls A method, which calls B method, which finally calls C method, then call chain will be क्या होगी, main, फिर A method, then B method, then C method. This is called chain. तो इसका पूरा एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में बताएंगे, पूरा प्रोग्राम जिसमें हो, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने बताया एक्सेप्शन हायरार्की, इसमें हमने थ्रोवेबल क्लास की चर्चा की, उसके सब क्लासेस की चर्चा की, एक्सेप्शन क्लास और एरर क्लास की। उसके बाद हमने डिफरेंसेस बताए एरर क्लास और एक्सेप्शन क्लास की। उसके बाद चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास की चर्चा की। उसके बाद हमने फोर्सिंग एंड एक्सेप्शन की चर्चा की, जिसमें थ्रो कीवर्ड की बात की। तो और इसका जो एग्जाम्पल प्रोग्राम है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर न करें, तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम 10 ईयर्स सॉल्व कराएंगे, इसलिए तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करना है,
नियर डियर फ्रेंड जितने भी हैं आपके, सबको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, जनरली सारे चैप्टर पार्ट में होते हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम थ्रोज क्लास के एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे और उसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।